Very good morning, students. Today is the second class of continuity. Yesterday, we started this chapter, continuity and differentiability, and we have discussed some basic concept in this continuity and differentiability. Today, we are here with a more concept and with some examples. Consider a function f of x equal to mod x. We know that already modulus function is always continuous. Mod x is continuous on all real numbers but not differentiable at x equal to 0. Here, this is a note. This say that f of x equal to mod x is continuous function. It is continuous function. Everywhere it is continuous but not differentiable at x equal to 0. It means that whatever in the modulus function, it is continuous. Okay, it is continuous function, but it is not differentiable where it becomes 0. Okay, here on taking x equal to 0, it become mod 0, it is not differentiable. Okay, it is not differentiable at x equal to 0. For example, we have f of x equal to sin x, mod sin x. So this is continuous function but not differentiable at the sin value become 0. The sin value is 0 at 0, pi, 2 pi, 3 pi and so on n pi. Yet n pi it is not differentiable because on taking that x value the function becomes 0. That's why it is not differentiable. Okay, the next is a Rolle's theorem. Rolle's theorem. A function we have function f from a comma b to r. Domain is a to b and its codomain is r. Set of real number is continuous on a closed interval a comma b and a differentiable on an open interval a comma b such that f of a is equal to f of b. We have a function f from a comma b to r. It is continuous in the closed interval a comma b and differentiable in the open interval a comma b such that f of a equal to f of b, where a and b are some real numbers, then there exists some c. In the interval a comma b, there exists a point c such that f dash of c is equal to 0. F dash of c is equal to 0. Then any function satisfying this condition, we can say that Rolle's theorem is verified. With that, we have one more theorem that is called a mean value theorem. Mean value theorem. Same as like the Rolle's theorem. Here let f from a comma b to r be a continuous on closed interval a comma b and open interval differentiable in open interval a comma b such that there exists at least one number c in a comma b such that f dash of c equal to f of b minus f of a divided by b minus a. Here f of a equal to f of b, then it is Rolle's theorem. Here f of a and f of b are not equal. So that f dash of c equal to f of b minus f of a divided by b minus a. Any function satisfying this condition, we can say that it's satisfying Rolle's mean value theorem. We have some useful results. We have some useful formulas, and you know all these formulas. Derivative of some functions, that is derivative of x power n is n into x power n minus 1. Derivative of 1 by x power n is minus n divided by x power n plus 1. And derivative of root x is 1 by 2 root x. Derivative of e power x is e power x. Derivative of e power minus x is minus e power minus ax. Derivative of e power ax is a into e power ax. Like this, we have some more formulas. आप क्या करेंगे, ये सारे फार्मूलाज को स्लोली वीडियो को रन करके ये फार्मूलाज देखेंगे, फार्मूलाज लिख लेंगे आप लोग, एंड
using these formulas to differentiate or to calculate the problem based on this continuity and differentiability. Here we have some formulas. More than that, we have some fundamental formulas which we are using to differentiate the functions. One is u into v formula, u into v. This is called Leibniz rule also, and we can say this is product rule. First and fourth are Leibniz rule or product rule. When the two functions or three functions are in multiplication, we are using these formulas. U as it is dv by dx plus v as it is du by dx. Derivative of k into u, k as it is du by dx, where k is any constant. If a function is multiplied with any constant k, writing k as it is differentiating only function. And you know derivative of constant is 0. The differentiation of u, v, w means we have three functions. They are in multiplication and differentiating them. So you differentiate one function remaining to as it is plus differentiation of second function remaining to as it is plus differentiation of remaining function as it is to as it is, two terms as it is. And in general, if there are 10 terms, if there are 10 terms which are in multiplication, then you differentiate the first function and write the remaining 9 as it is, plus differentiate the second one, remaining 9 as it is, plus differentiate third and remaining 9 as it is, and so on. You write goes on this till end of the function. And the last one is the quotient rule. Quotient rule, a function which is in the form of u by v. That is v du by dx minus u dv by dx whole divided by v square. So we are using these formulas to differentiate the functions. Let us start with question number 1. Today we are starting the examples. The function f of x equal to mod x minus y is mod x minus 5 is. Given function, you can see that it is in the modulus. Given function जो है ये modulus में है. अभी आज का स्टार्टिंग में देखिए मैंने बताया था कि अगर एक फंक्शन मॉडुलस में है तो वो हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा. इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. ओके, कंटिन्यूअस देखिए, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तीन ऑप्शन है जिसमें कंटिन्यूअस एवरीवेयर है. बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल वेयर दिस फंक्शन बिकम जीरो. वो फंक्शन जीरो जहां पे होगा वहां पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा. ये फंक्शन जीरो कब होगा? व्हेन वी टेक x इक्वल टू 5. x equal to 5, then it become 5 minus 5 0, then the given function will not become differentiable. Okay, so we are checking for not differentiable at x equal to 5. Here continuous everywhere but not x equal to 5, this is wrong. Continuous everywhere, it is correct. And continuous everywhere but not x equal to 5 and x equal to 0, no, none. सो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है. देखिए डिफरेंशिएबल के बारे में उसने मेंशन नहीं किया तो इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर. ओके, 5 पे भी कंटिन्यूअस है, 0 पे भी कंटिन्यूअस है वो, ठीक है ना. बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 5, याद रखेंगे. दिस सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. The function f of x equal to x if x is less than or equal to 1, 5 if x is greater than 1 is continuous yet. ये जो फंक्शन है कौन से वैल्यू पे वो कंटिन्यूअस है वो चेक करना है, ठीक है ना. whenever you get this kind of problem, this is always continuous function, but we have to check at this one whether it is continuous or not. okay, वो continuous है या नहीं है उस पॉइंट पे वो चेक करना है, ठीक है ना. अब समझिए यहां पे कर्व है, देखिए यहां से यहां तक तो कंटिन्यूअस है,
लेकिन यहाँ गैप है, तो पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। एट दिस पॉइंट इट इज नॉट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर हम इतना ही कर्व कंसिडर करेंगे तो फिर वो तो कंटिन्यूअस रहेगा, इतना ही कर्व कंसिडर करेंगे तो वो तो कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट इट इज नॉट कंटिन्यूअस। ओके, तो एट x इक्वल टू वन, x इक्वल टू वन, लेफ्ट हैंडेड लिमिट होगा वन और राइट हैंडेड लिमिट होगा 5। x की जगह यहाँ वन लेना है तो ये वन होगा और ये 5, यानी कि ऑन एट x इक्वल टू वन, एट x इक्वल टू वन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। लेफ्ट हैंडेड लिमिट वन आ रहा बेटा और राइट हैंडेड लिमिट की वैल्यू आ रही है 5, तो 1 is not equal to 5. Left-handed limit not equals to right-handed limit. So, this function is not continuous at x equal to 1. अगर हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट अगर फाइंड करेंगे तो ये होगा लिमिट एज x टेंड्स टू 1 माइनस the given function is x, substituting x equal to 1 it become 1, and the right handed limit is equal to limit as x tends to 1 plus f of x is here 5, और इसमें x ही नहीं है तो ये 1 भी पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 5 ही रहेगा। तो here left handed limit is not equal to right handed limit, so it is not continuous at x equal to 1। ओके, तो वन देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में वन है तो फिर ये गलत है, इसमें सेकंड ऑप्शन में भी वन है, गलत है, और ये फोर्थ ऑप्शन में भी वन है, इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन गलत है। हियर द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आई सेड बिफोर दिस this kind of function is continuous everywhere, but we have to check at that point where it is given in the function। ये फंक्शन में जो गिवन पॉइंट रहेगा ना 1 1, उस पॉइंट पे ही हम चेक करना, बाकी वो कंटिन्यूअस होता है। क्लियर? ओके, दिस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Point of discontinuity of f where f is defined by, we are finding the point of discontinuity। ये तो गिवन फंक्शन है, कौन से पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है वो चेक करना है। ठीक है ना? आई सेड दिस before this question number 2, in the question number 2 I said that this kind of function is always continuous, we have to check at that point which is given in the question। तो यहाँ पे x equal to 2 given है, other than 2 it is always continuous, we are finding the point of discontinuity। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम लोग यहाँ फाइंड कर रहे हैं। तो अगर x इक्वल टू 2 लेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंडेड लिमिट होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x जो है लेस देन वाला फंक्शन यहाँ पे लेंगे, दैट इज 2x प्लस 3, ये होगा 2x प्लस 3। यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो ये होगा 2 इंटू 2 प्लस 3 एंड इट इज इक्वल टू 2 टू द 4 प्लस 3, ये होगा 7। सिमिलरली वी विल फाइंड द राइट हैंडेड लिमिट एज x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x होगा ग्रेटर देन वाला, ग्रेटर देन राइट हैंडेड लिमिट, और जो लेस देन है वो लेफ्ट हैंडेड लिमिट, दैट इज 2x minus 3। we're taking x equal to 2 in this, it become 2 into 2 minus 3, 2 to the 4 minus 3 1। here left handed limit is not equal to right handed limit, means the given function is not continuous at x equal to 2, it is discontinuous at x equal to 2। not continuous means discontinuous, so this second ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, समझ में आ रहा ना? तो इस तरह के फंक्शन हमेशा क्या रहेंगे, वो कंटिन्यूअस रहेंगे। अगर वहां पॉइंट गिवन है तो उसी पॉइंट को चेक कर लेते हैं, और वो पॉइंट भी कंटिन्यूअस है, देन इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है। ठीक है ना? अगर वो पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो फिर इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर होगा। अगर उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है तो बाकी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, लेकिन उस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस होता है, याद रखेंगे आप।
Let us move to the next problem. Next problem. All points of discontinuity of f where f is defined by f is defined by इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने हैं. ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है हमको फाइंड करना है. ओके तो इसमें देखिए जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, +1 या -1 होता है. दिस इज अ सिग्नम फंक्शन. ये एक सिग्नम फंक्शन है. टाइप ऑफ फंक्शन में हमने डिस्कस किया था सिग्नम फंक्शन. सिग्नम फंक्शन इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू +1 if x is greater than 0 or -1 if x is less than 0 and it is 0 if x is equals to 0 at x equal to 0. So we are finding the point of discontinuous. Okay. तो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे यानी कि ग्रेटर देन 0 वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा. ठीक है ना. पॉजिटिव वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 2 लेते हैं 2/2 1 होगा. ओके लेकिन x इक्वल टू 0 पे 0 है तो इट इज नॉट डिसकंटिन्यूस, सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस. ओके और अगर यहाँ 2 लेते हैं तो 2/2 1 होगा और यहाँ वैल्यू 0 है. 3 है तो 3/3 1 होगा. 3/3 1 होगा और यहाँ इसकी वैल्यू 0 है तो कहीं पर भी वो कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है. ठीक है ना. इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट. लेकिन अगर हम लोग वी आर फाइंडिंग ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ना. ओके तो f ऑफ x इक्वल टू ये x इक्वल टू 0 है तो इसका वैल्यू 0 है. इसका वैल्यू हमेशा 0 आना चाहिए. सो दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम. ये LHL और RHL की तरह ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे इसका वैल्यू 0 ही आना है. अगर x इक्वल टू 0 लेंगे तो 0 ही आना है. तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है. अगर आप लोग 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0/0 इन्फिनिटी हो जाएगा है ना. इन्फिनिटी हो जाएगा या मॉड x यहाँ ये 1 होगा और ये 0 होगा. मॉड x/x मॉड x का वैल्यू होगा 1 और यहाँ पे इसका वैल्यू है 0. तो फिर एट 0 इट इज डिसकंटिन्यूअस होगा. एट 0 इट इज डिसकंटिन्यूअस होता है. ठीक है ना. तो अगर हम लोग f ऑफ 0 लेंगे तो इसका वैल्यू 0 है तो x इक्वल टू 0 इट्स वैल्यू इज 0. अगर हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट एज x टेंड्स टू 0 f ऑफ x क्या है मॉड x/x. तो मॉड x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है और x/x हो जाएगा 1. तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 इसका वैल्यू होगा +1. ओके इट इज इक्वल टू 1. तो ये f ऑफ 0 और लिमिट दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है. सो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट. एट 0 इट इज डिसकंटिन्यूअस. तो ये जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट find the relationship between a and b. We are finding the relation between a and b if the function following function is continuous at x equal to 3. ये जो given function है ये already continuous function है. Then we are checking that the relation between a and b. What is the relation between a and b that we are checking? So already it is given continuous function. Therefore f is continuous.
f is continuous at x is equal to 3, x इक्वल टू 3 पे वो कंटिन्यूअस है। और यहाँ लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल गिवन है, तो यहाँ पे ना लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट का प्रोसेस हमको यूज करना पड़ेगा इधर। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट अगर दोनों इक्वल है, देन ओनली द गिवन फंक्शन बिकम व्हाट, कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर दोनों ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट हमेशा इक्वल होता है, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, और गिवन फंक्शन देखिए लेस देन 3 के लिए ax प्लस 1 है, दैट इज ax प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ग्रेटर देन 3 वाला जो फंक्शन है वो bx प्लस 3 है। तो यहाँ पे राइट हैंडेड लिमिट के लिए bx प्लस 3, तो इसमें LHS और RHS में x की जगह 3 पुट करेंगे, दिस बिकम 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3 होगा। ये हो जाएगा 3a माइनस 3b, 3b आई एम टेकिंग टू LHS माइनस 3b प्लस 1 टेकिंग टू RHS, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, और ये a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3, 3 कॉमन लेके ना RHS में ट्रांसफर करेंगे, विल गेट a माइनस बी इक्वल टू 2/3। तो a माइनस बी इक्वल टू 2/3, द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन में आप देख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3। The difference of a and b is 2/3, that is the relation between the numbers a and b। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में उसी ने दिया कि ये गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3। तो कंटिन्यूअस है तो हम दोनों लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड लिमिट को इक्वेट करेंगे, वी विल गेट दिस रिलेशन बिटवीन a एंड b। ओके, अंडरस्टूड ना। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। For what value of lambda is the function continuous? ये जो फंक्शन गिवन है वो कंटिन्यूअस होना है x इक्वल टू 0, तो फिर कौन से वैल्यू के लैम्बडा का कौन सा वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। अगर वो कंटिन्यूअस है तो लैम्बडा का वैल्यू क्या होगा वो पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑलरेडी गिवन है ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। लेट f इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है। और आप देख सकते हैं इसमें लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल भी गिवन है, तो यहाँ होगा लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट। लेफ्ट हैंडेड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इसका f ऑफ x होगा लैम्बडा इनटू x स्क्वायर माइनस 2x, और राइट हैंडेड लिमिट होगा लिमिट एज x टेंड्स टू 0 प्लस, और ये हो जाएगा 4x प्लस 1। इसमें x की जगह 0 लेंगे, दिस बिकम लैम्बडा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 1, तो दिस बिकम लैम्बडा इंटू 0 इज इक्वल टू 1। lambda into 0 is equal to 1, 0 into lambda is 0, lambda getting vanish here, lambda getting vanish, it means that there is no value of lambda such that the given function is continuous। ये function continuous ही नहीं है क्योंकि 0 is equal to 1 तो possible ही नहीं है, 0 इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। लैम्बडा के कौन से वैल्यू के लिए भी ये वाला जो फंक्शन है कंटिन्यूअस नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्बडा, नो वैल्यू ऑफ लैम्बडा। तो यहाँ पे देखिए नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू, ठीक है ना। तो नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा, इट इज कंटिन्यूअस। ये नो वैल्यू ऑफ लैम्बडा क्यों आ रहा है, क्योंकि लैम्बडा ही वेनिश हो जा रहा है। इसमें जब हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट इक्वेट करेंगे तो लैम्बडा ही क्या हो रहा है, वेनिश हो रहा है, तो फिर लैम्बडा का वैल्यू मिलेगा ही नहीं, तो फिर वो कंटिन्यूअस होगा नहीं, ठीक है ना। We'll move to the next problem, that the function f of x equal to sin x plus cos x is continuous yet।
साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों फंक्शन एडिशन में है। देखिए साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एट एनी ऑल रियल नंबर पे वो कंटिन्यूअस, क्योंकि साइन एक्स में इन्फिनिटी वैल्यू नहीं आता है। अगर इन्फिनिटी वैल्यू आ रहा है तो उस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस होता है। और cos x भी आप देख सकते हैं, cos x भी कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। ओके क्योंकि cos x में भी इन्फिनिटी वैल्यू नहीं आता है। यह sin x और cos x दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। द सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर होगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। देखिए यहाँ पे एवरीवेयर, ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब होता है वो एवरीवेयर का मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो उसमें से कुछ इंटरवल में वो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा, तो वो उस इंटरवल को हम बोलेंगे ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स होगा। ठीक है ना। जैसे कि tan x है, tan x जो है वो ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूस होगा, लेकिन नॉट दोज पॉइंट वेयर इट बिकम इन्फिनिटी। वो 90 पे इन्फिनिटी आएगा, 270 पे इन्फिनिटी आएगा, यानी कि 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ऑड π/2 पे उसका वैल्यू इन्फिनिटी आता है। एट दैट पॉइंट इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस दैट पॉइंट। तो इसका इंटीग्रल पॉइंट होगा r-2n+1π/2, where n is belong to z, n is belong to z। तो वैसे यहाँ पे ऑल इंटीग्रल पॉइंट नहीं आएगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर होगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इट इज कंटिन्यूअस। The value of c in Rolle's theorem for the given function, रॉलिस थ्योरम वेरीफाई करने से c का वैल्यू क्या आएगा, दैट वी आर फाइंडिंग। ओके लेट अस गिवन हियर f of x इक्वल टू sin 2x। तो पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये रॉलिस थ्योरम इसमें सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। होगा तो c का वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम x की जगह यहाँ पे फर्स्ट एंड पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाद में हम ये नेक्स्ट एंड पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो f ऑफ 0 का वैल्यू साइन 2 इंटू 0, ये हो जाएगा 0। f ऑफ π/2, नेक्स्ट एंड इज π/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस बिकम साइन 2 इंटू π/2, 2 इंटू π/2, 2 कैंसिल पाई, साइन पाई का वैल्यू 0 है। तो f ऑफ 0 और f ऑफ π/2 दोनों वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब रॉलिस थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई होगा। तो वेरीफाई होगा तो फिर इसका जो पॉइंट है, सी पॉइंट है, वो पॉइंट हमको फाइंड करना है। तो let us find the derivative of this function f dash of x। f of x sin 2x है, तो फिर f dash of x क्या होगा, 2 cos 2x। we have to take this derivative is equal to 0, डेरिवेटिव हमको 0 लेना पड़ेगा इधर, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव 0 लेंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x हियर, इनटू 2 RHS में लेंगे तो फिर वो 0/2 0 होगा, cos 2x इक्वल टू 0 हुआ। cos 2x इज इक्वल टू, cos का वैल्यू 0 कौन से एंगल पे आएगा, 90 डिग्री पे आएगा, तो cos कैंसिल हुआ, तो ये 2x का वैल्यू होगा π/2 और x का वैल्यू हो जाएगा π/4। तो वेदर दिस π/4 इज बिलोंग टू 0 टू π/2, ये ओपन इंटरवल, ओपन ब्रैकेट लेना है। ओपन इंटरवल इसलिए लेना है क्योंकि ये डिफरेंशिएशन हो गया ना, तो ये ओपन इंटरवल दैट इज 0, π/2। तो ये जो पॉइंट आया है x इक्वल टू π/4, क्या इस इंटरवल में है 0 टू π/2? यस, π/4 यानी कि 45 डिग्री, वो 45 डिग्री 0 और 90 के बीच में आएगा। सो देयरफॉर इट इज वेरीफाइंग
दैट कंडीशन, तो x इक्वल टू पाई बाई 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह से हम ये रॉलिस थ्योरम वेरीफाई करते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Find the value of k so that the function f is continuous at the indicated point at x equal to 2। वो गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो फिर k का वैल्यू क्या है वो हमको फाइंड करना है। तो लेट अस कंसिडर f is continuous, f is continuous at x is equal to 2, indicated point यहाँ पे x equal to 2, the given function is continuous। अगर वो कंटिन्यूअस है और लेस देन है, ग्रेटर देन सिंबल है, लेस देन ग्रेटर देन सिंबल है, देन वी हैव टू कंसीडर लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट, दोनों इक्वल कंसीडर करना पड़ेगा। सो लेफ्ट हैंडेड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स कौन से लेंगे, जो लेस देन फंक्शन है ना, दैट इज के एक्स स्क्वायर। It is equal to limit as x tends to 2 plus RHL यानी कि जो ग्रेटर देन 2 वाला फंक्शन है, दैट इज इक्वल टू 3। तो x की जगह हम 2 पुट करेंगे, दिस बिकम k इंटू 2 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 3। वाई इट इज 3? बिकॉज RHS में देखिए x है ही नहीं, x है ही नहीं, तो फिर वहां पे जो फंक्शन है उसी को एज इट इज लिखना पड़ेगा। सो दिस बिकम k इंटू 4 इज इक्वल टू 3, देन k वैल्यू बिकम 3/4। k का वैल्यू क्या होगा? 3/4 होगा। तो इस तरह से हम k का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो देखिए ये जितने भी हमने क्वेश्चंस सॉल्व किए अभी, ये सारे क्वेश्चंस को थोड़ा स्लोली वीडियो को रन करते हुए आप देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे आप लोग। ठीक है ना, और इसी तरह के आपके पास अगर क्वेश्चंस है तो आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, then definitely you will solve this kind of problems if you understood these problems। okay, तो कल की क्लास में हम फिर मिलेंगे, ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के मोर प्रॉब्लम के साथ हम लोग मिलेंगे। ओके तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।